ऑलराइट आफ्टरनून पीपल, कैसे हालचाल? बढ़िया है। वेक्टर्स का जेई लेक्चर नंबर 2 आज इसको खत्म करना है, सो स्टे विथ मी। आई थिंक हमने लास्ट टाइम डॉट प्रोडक्ट तक का देखा था, आज क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। क्रॉस प्रोडक्ट इज दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स where the resultant gives us a vector quantity. So cross product, when two vectors are multiplied in such a way that the resultant is a vector quantity, that is what is called cross product. So a bar cross b bar, ये दो वेक्टर्स हैं a bar और b bar, मैं ये बीच में क्रॉस लगाया, a bar cross b bar is magnitude of a bar, magnitude of b bar sin theta into n cap. So if you check this out, this is magnitude, this is magnitude, this is magnitude. ये तीन magnitude है and n cap is the unit vector in the direction of a bar cross b bar. So this is a b sin theta n cap, and here n cap is the unit vector in the direction of a bar cross b bar. Do not forget theta is the angle between a bar and b bar. Now इस a bar cross b bar का magnitude mod a bar cross b bar is simply a b sin theta. Okay. And the most important thing कि सर इसका वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करें? You know, हमारा थम्स अप रूल तो वर्कआउट परफेक्ट होता है। इफ यू रिमेंबर, हमने ये काफी टाइम पहले चैप्टर 7 में देखा था। सपोज ये ए बार है, ये बी बार है और ये थीटा है। किस तरह फाइंड करें ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन? एनीबॉडी इज गोइंग टू टेल मी पीपल? वेरी गुड। पर इंपॉर्टेंट ये है कि किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सो लेट मी जस्ट टेल यू अगेन इन अ जिफी। सपोज दिस इज ए बार, दिस इज बी बार, रेड कलर्ड ए बार, येलो कलर्ड बी बार। ए बार क्रॉस बी बार करना है तो जो पहला वेक्टर है ए बार, उस पे अपना राइट हैंड का पाम रखें एंड बेस ऑफ द पाम शुड बी एट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द टू टेल्स, एंड अपनी उंगलियों से हल्का धक्का इसको मारे और ये ऐसा जाएगा जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा, दैट डायरेक्शन विल टेल यू ए बार क्रॉस बी बार। वी ऑलरेडी नो इट वेल ऑफ कोर्स। सो दैट वाज द आइडिया ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो और अगर मुझे बी बार क्रॉस ए बार चाहिए, यू नो, एज सिंपल एज इट इज, दिस इज बी बार, दिस इज ए बार, तो किस तरह करेंगे? ये लेट लतीफ सारे, ये बी बार है, ये ए बार है। हाउ डू वी डू बी बार क्रॉस ए बार? राइट पाम को यहां रख के ये नीचे वाला डायरेक्शन गिव्स यू बी बार क्रॉस ए बार। सो ए बार गोइंग टुवर्ड्स बी बार, this will be the direction of a bar cross b bar. This is also called right hand screw rule, and इस तरह हम a bar cross b bar का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। So a thing worth remembering is that a bar cross b bar is perpendicular to the plane formed by a bar and b bar, is perpendicular to the plane in which a bar and b bar lie. So if somebody asks you कि find me a unit vector which is perpendicular to both a bar and b bar, तो what you have to do कि आपको a bar cross b bar find करना है। So मैं ब्लू में लिखता हूं। So somebody asks you, give me a unit vector perpendicular to both a bar and b bar, it would be, people, n cap is a bar cross b bar over the magnitude of a bar cross b bar. All right. So remember this. If somebody asks you, okay, give me a unit vector perpendicular to both a bar and b bar, then you will first find a bar cross b bar, and then n cap will be a bar cross b bar over magnitude of a bar cross b bar. Then secondly, now what are the properties of this cross product? Let's take it up. सबसे पहले, is cross product commutative like dot product? Is it? Yes or no? You know, a bar dot b bar was equal to b bar dot a bar. बस इस a bar cross b bar
equal to B bar cross A bar? The answer is no. No. Because what's the reason, people? Very good. Magnitudes are same, but the direction is opposite. So commutative law does not hold. अर्थात A bar cross B bar is not equal to B bar cross A bar. But हाँ, A bar cross B bar is equal to minus B bar cross A bar. डायरेक्शन ऑपोजिट है पर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. सेकेंडली, distributive law, it will hold like dot product. So if I say A bar cross B bar plus C bar, तो तुम बिल्कुल डॉट प्रोडक्ट की तरह ही ब्रैकेट खोल पाओगे. दिस विल बी A bar cross B bar plus A bar cross C bar. Thirdly, if A bar and B bar are parallel, if they are parallel to each other, what is the angle between them? 0 degree. Then what is A bar cross B bar? Isn't it A B sine 0 n cap, and sine 0 is 0, so A bar cross B bar is 0. तो अगर पैरेललिटी प्रूफ करनी है तो A bar cross B bar कर सकते हैं, और अगर आंसर आता है 0 तो you can conclude that both vectors are parallel to each other. Fourthly, if A bar and B bar are perpendicular to each other, then how much is sine theta? Theta is how much? 90? 90. Then what is sine 90? 1. Very good. AB sine 90 n cap, and sine 90 is 1, which gives me this is AB n cap. And going on to my favorite idea, which is the Cartesian coordinate system. So, oh yes, buddy. So if I've got two vectors, like A bar is AXI cap plus AY j cap plus AZ k cap, and B bar is BXI cap plus BY j cap plus BZ k cap, then, well, I would seriously like to find how much is I cap cross I cap and stuff like that. I'll write that in blue. I cap and I cap, do you agree they are two parallel vectors, and दो parallel vectors हो तो उसका cross product क्या होता है? 0. So I cap cross I cap is J cap cross J cap is K cap cross K cap is 0. And what if I want I cap cross J cap and stuff? Wheel of life. I cap, J cap and K cap, and चक्कर इस तरह घूमता है. I cap cross J cap will be K cap. I cap cross J cap is K cap. J cap cross K cap will be I cap. And K cap cross I cap will be J cap. एंड ये हमने पता लगा लिया, तो अब ये आई कैप क्रॉस जे कैप इस के कैप. समबडी इज आस्किंग मी फॉर जे कैप क्रॉस आई कैप, तो दिशा चेंज हो जाएगी ना. सो दैट विल बी माइनस के कैप. के कैप क्रॉस जे कैप इज माइनस आई कैप, एंड आई कैप क्रॉस के कैप इज माइनस जे कैप. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. Then supposing यही Cartesian coordinate system है, and somebody asked me to find A bar cross B bar. You know, A bar dot B bar तो काफी आसान था, AX BX plus AY BY plus AZ BZ. But if somebody wants the cross product, then how do we do it? How do we find the cross product for that? So let's find out. So, yeah. I'm sorry, I did not understand quite. What do you want to say? Sir, in the wheel of life which you have made, Huh? that
of what? So in anti-clockwise direction. But you are finding out what? What are you trying to find? Check whether it is positive or But ये wheel of life जो है, it is just an idea to remember this. Wheel of life does not prove anything. Wheel of life does not mean anything because wheel of life in reality does not exist. I cap, j cap and k cap are three vectors which are perpendicular to each other like this. This is I cap, this is j cap, this is k cap. तो इसमें तू अगर लगाना चाहे तेरा थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल तो इट इज लाइक ये आई कैप है, ये जे कैप है. तो आई कैप क्रॉस जे कैप विल बी in the positive z direction. That is why it is k cap. बराबर, you understand? तो ऐसे कोई आई कैप, जे कैप, के कैप ऐसे होते नहीं है. ये सिर्फ दिखाने के लिए है, याद रखने के लिए, नथिंग एल्स. ओके, सो ए बार क्रॉस बी बार अगर करना हो, लेट्स गेट बैक टू बिजनेस. आई कैप, जे कैप, के कैप पहला लिख दिया. इसके नीचे पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स ए एक्स, ए वाई, ए जी, एंड इसके नीचे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट्स बी एक्स, बी वाई, बी जी. एंड नाउ हाउ डू वी डू इट? सबसे पहले वी राइट आई कैप, एंड जैसे ही आई कैप लिखता हूं ये और ये कॉलम और ये रो ये दोनों उड़ जाता है. कौन बचता है? ए वाई ए जी, बी वाई बी जी. तो ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई, बराबर ए वाई बी जी माइनस ए जी बी वाई. फिर जे कैप विल बी माइनस, जे कैप आया तो ये उड़ गया, ये खुल गया, ये खुल गया है बाबा, ये तो हमेशा उड़ा ही रहेगा ये वाला. सो कौन बचा? ए एक्स ए जी, बी एक्स बी जी. तो ए एक्स बी जी माइनस ए जी बी एक्स, एंड फाइनली के कैप अगेन प्लस के कैप आया तो ये वाला कॉलम उड़ गया. एंड कौन बचा रे? ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई. तो जिसके आओ ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स. इज दिस एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल? कोई दिक्कत? नो? कोई प्रॉब्लम? ऑलराइट. अब इतना तो हमको लगभग पता था, इतना हमने बोर्ड में किया था. अब कुछ नई नई चीजें करें, कुछ अलग अलग चीजें करें, कुछ टिप्स, नई टिप्स क्रॉस प्रोडक्ट के लिए. फिर आपको एक स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा, जैसे शिजवान ट्रिपल राइस होता है ना वैसे. तो अलग अलग चीजें होंगी. तो नोट पहला, दी पीपल ये ध्यान से देखिएगा, हो सके तो जॉट डाउन कीजिएगा. इफ ए बार एंड बी बार आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, then a bar cross b bar का मैग्नीट्यूड इज हाफ. सबसे इंपॉर्टेंट बात व्हाट. अच्छा, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड में ये डिराइव करता हूं, चलो आपके लिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा. सपोज ये ए बार है, ये बी बार है, एंड ये मैंने सिर्फ तीसरी साइड ऐसी बना दी है. नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैंने यहां से, ये थीटा है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर मारा. लेट्स कॉल दिस ट्राइंगल ए आई, यू कैन कॉल दिस ए बी सी डी, पी क्यू आर, एंड लेट दिस पॉइंट बी एस. दिस वेक्टर इज ए बार. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल? Isn't it half base into height? And how much is the base? QR. Isn't the base QR? And how much is the height? Isn't it PS? Now if you look at this closely, isn't QR the magnitude of A bar? And how much would be PS? ये है B bar B cos theta, तो ये है B sin theta. So we know QR is simply A and PS is B sin theta. Anybody has a problem with B sin theta?
पी एस बी साइन थीटा कैसे हुआ? एनी प्रॉब्लम्स? दिस इज बी बार कॉस थीटा, दिस इज बी साइन थीटा. ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज हाफ इंटू ए इंटू बी साइन थीटा. इसको पहचाना आपने, ए बी साइन थीटा को? Isn't it the magnitude of a bar cross b bar? So area of triangle PQR is half of the magnitude of a bar cross b bar. Alright, आप लिखना चाहो तो ये ब्लू कलर में जो मैंने लिखा है वो लिख लो. Area of any triangle is half the magnitude of the cross product of the two vectors which make up its any two sides. Okay, so this is area of triangle PQR. Also secondly, अगर मेरे पास parallelogram है, if a bar and b bar are the two adjacent sides of a parallelogram, then the area of the parallelogram, you know, it is a lovely idea this. Then area of the parallelo, let me show you the parallelo. Parallelo is something like this. Wanna be my parallelo ho. और ये हो गया प्यारे लल्लो. लेट अस कॉल इट PQRS. तो इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A bar क्रॉस B bar. Fair enough. So area of a parallelogram PQRS is the magnitude of A bar cross B bar. Did you see this? No problems? Okay? Alright. आगे बढ़ जाते हैं. नंबर 3. अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको बता देता हूं. जैसे टॉर्क, यू नो, क्रॉस प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले. टाउ बार इज आर बार क्रॉस एफ बार. एंगुलर मोमेंटम L bar is R bar cross. We've already seen that, so there is nothing new in that. So this is the idea. Then number 4, we have a scalar triple product. Now what is a scalar triple product? ध्यान से देखिएगा, पहली बार देख रहे हैं आप लोग. If we have 3 vectors, अभी इस बार 3 vectors की बात आई है. 3 vectors A bar, B bar and C bar, then स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करने जा रहा हूं. जैसे वेक्टर प्रोडक्ट को क्या डिफाइन करते थे? A बार क्रॉस B बार. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है सर? बता देता हूं सर. देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, प्लीज बी केयरफुल इन सीइंग दिस. Scalar triple product is A bar dot B bar cross C bar. So A bar dot B bar cross C bar is called your scalar triple product. And इसका ये है फंडा कि if A bar dot B bar cross C bar scalar triple product is 0, अगर तुमने A bar dot B bar cross C bar देखा और आंसर 0 आ रहा है, then it means that A bar, B bar and C bar are coplanar. अब सर कैसे, समझ में नहीं आया कैसे किया आपने? अच्छा, सपोज ये ए बार है, ये बी बार, ये बी बार है, ये सी बार है, बरोबर. बी बार क्रॉस सी बार कैसा होगा? ऐसा. अच्छा, अगर तुम्हारा जो ए बार है वो ऐसा है, यू नो, इन द सेम प्लेन एज बी बार एंड सी बार,
ये दोनों वेक्टर्स कैसे हो गए? ये तुम्हारा बी बार क्रॉस सी बार और ये ए बार. हाउ आर दिस लुकिंग? परपेंडिकुलर. आर दे परपेंडिकुलर? And what is the dot product of two perpendicular vectors? 0. 0. तो a bar dot b bar cross c bar अगर 0 हो जाए तो it means that a bar, b bar and c bar are coplanar. Okay, so this is how the entire thing works. And फिर vector triple product. Yeah. वापस बताओ ना ये 0 वाला. सबसे पहला, सपोज ये तेरे बी बार और सी बार हैं. बी बार है, ये सी बार है. हाउ विल यू डू बी बार क्रॉस सी बार? ओके, दिस इज बी बार क्रॉस सी बार. नाउ इफ आई हैव वेक्टर ए बार इन द सेम प्लेन एज बी बार एंड सी बार, कैन यू सी दिस इज ए बार एंड दिस इज बी बार क्रॉस सी बार. ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90. एंड व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट of two perpendicular vectors? 0. समझ में आ गया? हाँ सर. ओके, सो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का कुछ काम नहीं है पर फिर भी बता देता हूं. अगर मेरे पास 3 वेक्टर्स है, ए बार बी बार एंड सी बार, देन वेक्टर ट्रिपल, पूछते नहीं है वैसे बट सिर्फ बता रहा हूं आपको. Vector triple product is A bar cross B bar cross C bar. This is your vector triple product. Okay, so if you want, you can jot down these important things. Let's start moving up. Scalar triple product देखा, vector triple product देखा. Just have a look. जो important formula लगे वो jot down कर लो. कुछ और है तो बताऊंगा आपको मैं. Fair enough. अच्छा, let me also tell you, scalar triple product A bar dot B bar cross C bar represents the volume. Let me write that down. Scalar triple product gives the volume of the parallelopiped formed by the 3 vectors A bar, B bar and C bar. So scalar triple product is also the volume of the parallelopiped. Vector analysis, Arihant's master resource book में SP7 is your number. So what does it say? What does SP7 say? It says a car moving towards the south changes its direction towards the west, moving with the same speed. Did you understand? कार किस तरफ मूव कर रही है? साउथ. सो इनिशियल पोजीशन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी टुवर्ड्स साउथ. एंड फाइनल किस तरफ मुड़ जाती है? टुवर्ड्स वेस्ट. ओके, find the direction of change of velocity of the car. I mean, this is as lovely as it gets. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन लगता है आपको पर ऐसा नहीं है. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. बराबर. सबसे पहले बॉडी किस तरफ मूव कर रहा था? साउथ में. तो isn't this V1 bar and इस तरफ मूव करने के बाद वो कैसा मुड़ा? वेस्ट में. तो दिस इज V2 बार. एंड दोनों टाइम पे स्पीड सेम रहा. अच्छा, अगर तुम इसको एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम समझते हो एंड दिस इज x एंड दिस इज y, तो आपका इनिशियल वेलोसिटी V1 बार कौन सी डायरेक्शन में है? Isn't it towards नेगेटिव y? तो माइनस V J कैप. एंड अब ये V2 बार देखो कौन सी डायरेक्शन में है? नेगेटिव x. सो माइनस V I कैप. इज देयर एनीवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड कि ये इक्वेशंस में कैसे लाया? एनीवन? ऑलराइट.
And so now what are you looking for? You are looking at change in velocity, and I think that is a formula everyone knows. Delta V bar is final velocity minus initial velocity. V2 bar is minus Vi cap minus, how much is V1 bar? Minus Vj cap. So let's hustle up. How much is your delta V bar? Minus Vi cap, minus minus. और मुझे अब इसको प्लॉट करना है डेल्टा वी बार को. ये x है, ये y है. माइनस वी आई कैप मतलब किस तरफ होगा? डू यू एग्री? टुवर्ड्स नेगेटिव आई कैप. एंड प्लस वी जे कैप. वाह, दिस इज वी जे कैप, दिस इज माइनस वी आई कैप. इन दोनों का मिलन. ओ वाह 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 भाई, मिलन तो बनाओ जरा. Isn't this डेल्टा वी बार? और ये कौन सा डायरेक्शन हुआ भाई? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है. Isn't it towards नॉर्थ वेस्ट? सो डेल्टा वी बार इज अलोंग नॉर्थ वेस्ट. एब्सोल्युटली क्लियर? कोई शक? कोई शक? सर हाँ सर, हाँ. जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट में वो हेड टू हेड या टेल टू टेल लाने के लिए आप वो एग्जांपल नहीं करा देते थे? हाँ मतलब कि सपोज नीचे होता था तो फिर ऊपर ला देते थे. हाँ हाँ. तो इसमें भी ऐसा नहीं कर सकते? कहाँ करना है तेरे को? और इसमें सबसे पहली बात, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट तो आता ही नहीं है, तो तू क्यों करना चाहता है? क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता पर रिजल्टेंट आ जाएगा ना वैसे. पर ये भाई भाई भाई, यहाँ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये सुन. मुझे उन्होंने इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करने को नहीं कहा, मुझे चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करने को कहा है. डू यू अंडरस्टैंड? कोई भी दो वेक्टर्स हो मेरे पास, ये ए बार है और ये बी बार है, रिजल्टेंट का मतलब है ए बार प्लस बी बार. महाराज, ये होता है रिजल्टेंट. तो फिर तू यो करेगा डी 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 और फिर यहां से मारेगा. ये हो गया तेरा रिजल्टेंट विच इज ए बार प्लस बी बार. दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द रिजल्टेंट, दे हैव आस्क्ड फॉर चेंज इन वेलोसिटी. फेयर इनफ? ओके सर. सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट. चेंज इन वेलोसिटी क्या है वो देख रहे हैं. तो अच्छा, इसके जैसा एक और चेंज इन वेलोसिटी वाला सम दिखाता हूं आपको मैं. ये रहा राउंड 1 का 23. सॉरी, क्या क्या बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है. कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? अच्छा, आई टेक दिस ऑफ. राउंड 1 का 23. आर यू लुकिंग एट राउंड 1 का 23? आई होप यू लुकिंग. मैं इधर ही लिखूंगा राउंड 1 का 23 ताकि आपको इसका बेनिफिट मिले. व्हाट डज राउंड 1 का 23 स्टेट? A proton in a cyclotron changes its velocity from 30 km per second north. So initial 30 km per second किस तरफ है? North. To 40 km per second east. Final 40 km per second कैसा? East. और कितने टाइम में कहा गया? टाइम 20 सेकेंड. What is the average acceleration in this time? So this is lovely. जैसा ये है वैसा ही ये है, जैसा इसको बनाया वैसा ही इसको बनाने का है. तो do you think we can make it up? You want to do it? यस सर. अच्छा चलना, इस बार मेरे साथ कर ले. बराबर? नहीं सर. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. चल मैं इनिशियल शुरू करा देता हूं तेरे को. 30 किलोमीटर पर सेकेंड नॉर्थ, दिस इज योर V1 बार. एंड 40 किलोमीटर पर सेकेंड ईस्ट, ईस्ट है ईस्ट. अब कुछ भी करण तो पहले V1 बार और V2 बार के इक्वेशंस लिखना आवश्यक है. V1 बार भाई, V1 की वैल्यू कितनी है? 30.
और क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप क्या? Positive j cap. And anybody telling me what will be V2 bar like? Very good, very good. एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुमको इसका करना क्या है? V1 बार V2 बार तो ला दिया हमने, अब इसका करना क्या है? एवरेज एक्सीलरेशन मांगता है. एनीबडी नोज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सीलरेशन और व्हाट? Have you forgotten? This is sorry. Average A bar is delta V bar. भाई ये पूरे कार्यक्रम में ये ना भूले कि वेक्टर के साथ काम कर रहे हैं. V2 माइनस V1 कोई मतलब ही नहीं है, जब तक बार नहीं लगता तब तक अर्थ ही नहीं है कोई. सो V2 बार माइनस V1 बार ओवर डेल्टा T. चलो श्रीमान, V2 bar how much? 40 j cap minus 40 i cap. तू गलत साल तो मेरे को लेके जा रहा तू है. Upon 22nd, isn't it? I think this is easy peasy Japanesey. 2 i cap minus 30 by 20. ये आ गया तुम्हारा एवरेज एक्सीलरेशन. पर उन्होंने मैग्नीट्यूड मांगा और डायरेक्शन मांगा है. ओके, नो प्रॉब्लम. मैग्नीट्यूड, भाई व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर? वेरी नाइस. सो रूट ऑफ आई कैप का क्या है कंपोनेंट? 2 स्क्वायर प्लस, ओके लॉल्स, 2 का स्क्वायर 4, 1.5 का स्क्वायर 2.25. ए रूट ऑफ 6.25, isn't it 25? 2.5. So magnitude of A bar is 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. पर इतने में खत्म नहीं होगा, तुमको इसको प्लॉट करके एंगल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा इस तरह से. ओहो हो हैं बाबूजी, ओहो हो गया. सॉरी, कर सकते y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट. पर फिर वो एंगल तू अगर आंसर में देखेगा तो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट वो सब है, तो फिर क्या करेगा बंधु, है ना? तो पहले काम कर दे दें. 2 आई कैप, ओके ये x है ये y है, फिर ये ईस्ट ये नॉर्थ ये साउथ ये वेस्ट बन जाएगा. ये 2 आई कैप ये 2 आई कैप एंड ये माइनस 1.5 जे कैप. ओ तो फुकट में इतना जगह वेस्ट किया. रुक थोड़ा जगह बचा लेते हैं, है ना? जगह बचाते तो अपने कोई काम में आता है. ये रहा तेरा 2 आई कैप एंड ये तेरा माइनस 1.5 जे कैप है बंधु. माइनस 1.5 जे कैप. भाई हमको क्या मारना है? मिलन कराना है, मिलन. और ये तेरा हाय ये तेरा ये बार है. अच्छा एंगल ये रहा थीटा, लेट्स कॉल इट. पर सबसे पहले कुछ भी करने से पहले ये नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट, कौन सा दिशा लग रहा है? बराबर, ईस्ट से साउथ मतलब साउथ ऑफ ईस्ट. कितने एंगल पे? अब थीटा फाइंड करो. tan थीटा इज व्हाट? ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट. तो 1.5 by 2. भाई हाउ मच इज 1.5 by 2? 0.75. एंड 0.75 का tan इनवर्स क्या होता है? यू श्योर 0.75 है? tan 30 is how much? 1 by root 3, 0.57. tan 45 is 1. तो 30 और 45 के बीच में है ये. tan 30 is 0.57, tan 45 is 1. तो isn't it lying between 0.57 and 1? तो थीटा इज करीबन 37 38 के आसपास होना चाहिए. देख तो जरा
37 38 के आसपास। 37 है, लवली, अपने को कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन देख के अंदाजा आ जाएगा। 37 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। यू नो, उन्होंने एक ऑप्शन में नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, वो ऑप्शन गलत है। मैं तुमको बताऊं कौन सा ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन बी में 2.5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर सही है, 37 डिग्री सही है, बस उन्होंने नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, वो नॉर्थ को कैंसिल करके साउथ लिख देना, उनका आंसर गलत है। ऐसे बहुत कम मौके आते हैं कि जब हम बड़े लोगों को गलत साबित कर लेते, पर वो बड़े लोग हैं, अपने ये काम करके निकले हैं। सो साउथ ऑफ ईस्ट, कैंसिल दैट नॉर्थ एंड पुट साउथ ऑफ ईस्ट। सॉरी, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए क्या है? अरे पर तेरा 37 डिग्री इसके साथ है या इसके साथ है बाबा? अगर तू ईस्ट ऑफ साउथ है मतलब साउथ से 37। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साउथ ऑफ ईस्ट? ईस्ट से साउथ, तू ईस्ट में खड़ा था, वहां से 37 डिग्री साउथ में आया, दैट इज 37 डिग्रीज साउथ ऑफ ईस्ट। हेलो सर, या सर वो प्रीत को ज्वाइन करो ना। अरे यार, उसको बोलना कल आना यार। बेस्ट। प्रीत दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को कहीं पे। ये हार्दिक पटेल ही प्रीत है? नहीं, ये अभी आया। ले प्रीत तेरा क्या हुआ भाई? प्रीत हाँ सर। क्या हुआ? बीवी बच्चों ने रोक लिया था क्या? नहीं सर। कुछ ज्यादा ही लेट आ गया आज? सो गया था? नहीं सर, तो खो गया था? मैं दूसरा लिख रहा था, इसलिए मैं भूल ही गया था। अरे, वो अरे, अभी अरे। मेरे पास नहीं था। कमाल करते हो प्रीत बाबू हैं। ओके, कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? हाँ। साउथ ऑफ ईस्ट मतलब आपने समझा कि साउथ से ईस्ट की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं, साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट। अच्छा, ये हिंदी में लिखेंगे तो ईस्ट से साउथ। इंग्लिश में समझ में आता है? साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से हम जाएंगे साउथ। तो ये तेरा ईस्ट है, वहां से टिगड़ी गिड़ी 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 साउथ की तरफ, ये साउथ है, तो यो जाने का कितना डिग्री? 37। तो यहां से 37 डिग्री में जाऊंगा नीचे। सो ये पॉइंट इज कॉल्ड 37 डिग्रीज। किस तरफ? अगर तू नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखता तो तुझे यहां जाना पड़ता। दिस इज नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड दिस इज साउथ ऑफ ईस्ट। यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. सो व्हेनेवर, सॉरी, मैं तेरे को बताता हूं, चल मैं तेरे को बताऊंगा, तू उस एंगल को प्लॉट कर। ओके, सपोज आई टेल यू 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ, किस तरह प्लॉट करेगा? मतलब क्या करने का? अभी मुझे ये पॉइंट चाहिए विच इज 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो हाउ डू यू प्रोसीड? इसका मतलब क्या? इसको इंटरप्रेट कैसे करोगे? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। मतलब किस तरफ? नॉर्थ से 15 डिग्रीज यो आएंगे। सो दिस विल बी द पॉइंट 15 डिग्रीज। सो दिस पॉइंट इज 15 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, and suppose I tell you 30 degrees south of west, how do you go? नहीं, अभी दिव्या नहीं बोलेगा, दिव्या नहीं बोलेगा, कोई और बोलेगा। कोई और ट्राई करो, कोई और ट्राई करो। कौन करेगा ट्राई? आओ पकड़ते किसी को, कौन करेगा? अमृत कौर, यस सर। आप ट्राई करो जी। सर वेस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री। मतलब वेस्ट से इस तरफ जाऊं ना ऊपर? सर नीचे
अच्छा, मेरे को अंदाजा नहीं है, पहली पहली बार कर रहा हूँ ना मैं ऐसे। यो जाऊं, कितना जाऊं? 30 डिग्री। 30 डिग्री, मतलब यहां तक आने का, ताकि ये लाइन वेस्ट के साथ कितना एंगल बना सके? 30। नाउ डू यू एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड? कोई शक? किसी और को शक है कि सर मेरे को पूछो ना, मेरे को एक कराओ ना? एनीबॉडी? सबको समझ में आ गया लग? हाँ, नो सर, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड। आई लव नो प्रॉब्लम्स, बट आई ऑल्सो लव प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर रहे हो। ओके, मैं आगे बढ़ रहा हूं। लेट मी टेल यू विच नंबर। अपने एंगल जैसे फटाफट फाइंड किया ना वैसा तो तेरे सामने फाइंड किया बेटा। अब जैसे मेरे पास 0.75 का कोई वैल्यू है ही नहीं, मेरे को याद नहीं है कौन सा tan है वो, तो मैं देखूंगा कि ये 0.75, मुझे tan 30 पता है, tan 45 पता है, tan 60 पता है। tan 30 is 1 by root 3, which is 1 by 1.732, which is 0.5771, 0.57। tan 45 दुनिया में जाहिर है 1 है। अब तेरा ये 0.75, isn't it lying between these two? यस सर। तो अट्ठे गट्ठे ऑप्शन मार दिया कि 37 38 के आसपास होना चाहिए। ऑप्शन में देखो क्या उसके आसपास का कोई आंसर है। मुझे पता नहीं था आंसर क्या है, तो मैंने एक आइडिया लगाया, ऑप्शन में उसके बाजू में बैठ गया। सिंपल, दैट्स हाउ इट इज। यस सर। इट इज गेस वर्क, कुछ नहीं है, कोई नई बात नहीं है, बस गेस वर्क है ये, बस कैलकुलेटेड गेस है, नॉलेजेबल गेस है। अच्छा, आई एम लुकिंग एट SP13। SP13 वैसे हमने किया हुआ है बचपन में, तो SP13 को बाद में देखते हैं। आई थिंक SP14 इज द नेम ऑफ द गेम। ये JEE नीट लेक्चर नंबर 2। आई थिंक आई नीड टू चेंज द पेन। ओके, SP14, आर यू देयर विथ SP14? What does it say? SP14 says, what is the angle between vectors A bar 3i cap minus 4j cap and B bar is 2i cap minus 3k cap? इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। भाई जब भी एंगल निकालने की बात आए, cos थीटा मुझे याद आए, डॉट प्रोडक्ट मुझे याद आए, ए बार डॉट बी बार, एंगल निकालने का सबसे आसान जरिया ए बी। सो cos थीटा is a bar dot b bar over a b. Okay, and a bar dot b bar is what? Ax bx plus ay by plus ac bc, 3i cap minus 4j cap into 2i cap minus 3k cap, the whole over root of, अच्छा ए बार का मॉड क्या होता है? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। आई नो इट इज -4 का स्क्वायर, बट आई एम नॉट ओके ठीक है, आप बोलते हो तो मैं आई टेक इट। 3 इंटू 2 प्लस -4 इंटू, यहां जे कैप है ही नहीं, आओ जो हो, और यहां के कैप नहीं है, यह आओ जो वाली चीज है। अच्छा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट क्या होता है? 5, एंड 4 प्लस 9, हाउ मच इज इट? root 13. So this is 3 2s are 6 divided by 5, and how much do you think will be root 13? 13 का रूट 3.5 के आसपास हो सकता है क्या? लेट मी फाइंड आउट। 5 5s are 20, or 5 are 15 16 17, 3 5s are 15, 3 3 and 1 10, this is 12, नहीं 12.25, मतलब 3.6 के आसपास होना चाहिए, बराबर। तो 3.6 के आसपास लिया मैंने, एंड ए 6/5, लेडीज एंड जेंटलमैन, 6/5, isn't it 1.2 है ना? Yes, sir. एंड दिस इज 3.6, बार तेरी 36। डू यू एग्री? Yes, sir. ओ मैन, सो आई गॉट अ लवली आइडिया, 0.33। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे क्यों कुछ गड़बड़ लग रही है? हमने सब बराबर तो किया ना?
आई कैप डॉट आई कैप 3 इंटू 2, 4 जे कैप कट गया, ये कट गया, 3 + 4 ये 5 हो गया, 4 + 9 √13 हो गया, एंड √13 3.6 हो गया, तो 6/5 इज 1.2 हो गया, एंड दिस 0.33। तो आंसर क्यों ऑड आ रहा है? कुछ गड़बड़ आ रही है आंसर में, पता नहीं, या तो उनका आंसर कुछ और ही चीज पे टिका हुआ है। पर अगर 0.33 होता, एनीबडी हैज cos inverse of 0.33? Anybody knows what cos inverse of 0.33 looks like? Let's find out. अच्छा, कौन से cos की वैल्यूज आपको पता है? How much is cos 30? 0.866. How much is cos 45? 1/√2. 0.707. How much is cos 60? 0.5. Do you agree ये 0.33 उससे भी छोटा है? Yes, sir. तो करीबन 70-75 के आसपास होना चाहिए, करीबन। ओके, सो आई थिंक 75 के 70 के आसपास होना चाहिए, 70 के आसपास आई थिंक होना चाहिए। इस हिसाब से बराबर। आई डोंट नो एसपी में क्या गड़बड़ है, शायद उन्होंने डेटा में कुछ गड़बड़ करी है, या मैंने कुछ डेटा लिखने में गड़बड़ करी है, बट दिस द डेटा आई हैव। कैन यू सी इन योर बुक्स डेटा में कुछ गलत है क्या? 3i कैप - 4j कैप 2i कैप - 3। मैंने सॉल्यूशन में -6 ले लिया है। किसके साथ? शायद 3 या 2 में से कोई एक माइनस होना चाहिए। मतलब हमारा सही है, हाँ, हमारा सही है। हमारा सही है, लेकिन उन्होंने शायद मिस्टेक की है। अच्छा, मतलब शायद उनका -3i कैप - 4j कैप ऐसा होना चाहिए, ऐसा कह रही है? तो पर बेटा 3i कैप + 4j कैप में भी ऊपर माइनस तो आएगा ही नहीं, सही सेम ही होगा। यहां पे माइनस होना जरूरी है, अगर तेरा माइनस यहां आना चाहिए तो। उन्होंने 2 के साथ माइनस लिए। सो cos थीटा, ये लोग भी है ना कभी कभी इधर उधर का माल कर देते हैं। सो 3i कैप - 4j कैप -2i कैप + 3k कैप ओवर रूट ऑफ सेम ओल्ड स्टोरी, 3 + -4 का स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। नीचे कोई फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पे 3 × -2, बाकी तो सारे 0 हो जाएंगे। ये 5 है, ये रूट ऑफ 13 है, नाम है 13 -6/5 × 3.6। वो मैन आंसर इसका -0.33 आता है। वाह, ये बहुत मजे की बात है। जब cos थीटा माइनस आ जाए तब क्या कीजिएगा हुजूर? भाई cos थीटा की वैल्यू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होती है? सेकंड क्वाड्रेंट। Yes, sir. सो वी नो, सेकंड और थर्ड। पर हम फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ही बात कर रहे हैं फिलहाल, बराबर। सो वी नो cos ऑफ 180 - थीटा। भाई हाउ मच इज cos ऑफ 180 - थीटा? cos थीटा। पर सेकंड क्वाड्रेंट में आने से cos माइनस हो गया ना महाराज, बराबर है। सो इसका मतलब है ये थीटा नहीं है, 180 - थीटा है। ओके, सो 180 - थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 0.33। ये cos इनवर्स ऑफ 0.33 कितना निकाला? 70। तो यहीं पे ढाल देता हूं, 180 - थीटा इज 70। थीटा इस तरफ, 70 इस तरफ, 180 - 70 करीबन 110 के आसपास। देखो तो जरा, Yes, sir. बूम बूम बूम, लवली। सो माइनस अगर कॉस की वैल्यू आ जाए तो क्या करने का अब आपको पता है। सो माइनस वैल्यू आ जाए तो इट इज 180 - थीटा, एंड दैट इज हाउ द कॉस इनवर्स रॉक्स एंड रोल्स। ओके ओके, आई एम मूविंग ऑन। मैं करने जा रहा हूं बस थीटा करके करने का। किसका? हाँ सर, ऐसा आया था ना, तो एक बार 90 + थीटा करके कराया। पर एक बार बेटा समझ ले, अगर तू 90 लेता है ना तो कॉस का साइन हो जाता है। तो अगर तेरे को साइन करना है तो आई डोंट माइंड, हाँ सर। तेरे को साइन करना है, गो अहेड, बी माय गेस्ट, आई डोंट माइंड। जैसे cos 180 - थीटा इज cos थीटा माइनस cos थीटा, उसी तरह साइन ऑफ
90 प्लस थीटा, जैसे ही 90 आया ना साइन का कॉस हो गया, बट क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आया तो माइनस हो गया. डू यू अंडरस्टैंड पीपल? Okay, let's move on. I am looking at number I'm looking at SP17. Are you looking at SP17? फटाफट इमीडिएटली SP17 देखिए. वक्त थोड़ा सख्त हो रहा है, मेरे को कुछ एक न्यूमेरिकल्स करने ही लेने हैं, फिर आगे बढ़ जाओगे. SP17. Okay. Sorry. Okay, what does SP17 say? A bar is I cap plus 2k cap. B bar is J cap minus K cap. Find A bar cross B bar. Okay, dokie. Okay. हाँ बिल्कुल करो ना, मेरे साथ करो. I cap, J cap, K cap. ए बार के कंपोनेंट्स आई कैप का 1, जे कैप का 0, के कैप का 2. बी बार के कंपोनेंट्स आई कैप का 0, जे कैप का 1, के कैप का -1. सो आई कैप को कॉमन लिया, 0 इंटू -1 -2 इंटू 1 माइनस जे कैप लिया, 1 इंटू -1 -2 इंटू 0 के कैप का लिया, 1 इंटू 1 -0 इंटू 0. आंसर ला देने की जल्दी में मत रहना, नहीं तो कहीं कुछ मिस्टेक हो गई ना तो सीटी बजाते नजर आओगे. ये 0 -2 माइनस जे कैप -1 -0 प्लस के कैप 1 -0. और अब आंसर बैठा ही है. सो ए बार क्रॉस बी बार क्या मिला? 0 -2 इज हाउ मच? -2 आई कैप. -1 -0 इज -1 -1 इंटू -1 +1 प्लस के कैप प्लस के कैप. आंसर को ध्यान से देखें, करेक्ट आंसर है. मैं एग्जाम्पल 7 करने जा रहा हूं. एग्जाम्पल 7 कहता है द एरिया ऑफ अ प्यारे लल्लो. एरिया ऑफ प्यारे लल्लो कितना होगा जिसके दो साइड्स हैं? ए बार इज आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड बी बार इज 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप. आई होप आपको याद हो द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. सो पहले ए बार क्रॉस बी बार फाइंड करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड आई कैप जे कैप के कैप 1 2 3 3 -2 1. अगर आपको प्रैक्टिस हो गई हो अच्छी तो आप फटाफट कर सकते हो. 2 1 2 -3 इंटू -2 -6. ओनली इफ यू हैव इनफ प्रैक्टिस. नहीं तो इस तरह करो शांति से. जे कैप 1 1 1 माइनस 3 3 9 प्लस के कैप 1 इंटू 2 -2 माइनस 3 2 6. So what are we left with? मेरा फाइनल आंसर क्या है ए बार क्रॉस बी बार का? 2 -6. Isn't it 2 plus 6 that is 8? 8 I cap. 1 -9 -8. Minus of -8. My goodness. And -2 -6 -8. Oh wow. So magnitude is mod a bar cross b bar. Well, it doesn't require a rocket scientist to figure this out. 8 square plus 8 square plus minus 8 square. अरे 8 8 8 तीन बार है तो isn't it 8√3? Yes, sir. And therefore the area of a parallelogram, which is magnitude of a bar cross b bar, is 8√3 square meter या square centimeter. अच्छा कुछ नहीं लिखा तो square units. Agreeable? Okay. I am looking at round 1 का 15. Stay with me. Hold the line. Round 1 का 15 coming up.
आई होप यू आर लुकिंग एट इट. राउंड 1 का 15. राउंड 1 का 15 डेटा लिखना शुरू करेंगे इसी वक्त. यस सर, मैं डेटा इंटरप्रेट करूं. करना कर 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 करने में क्या bar जाता. is equal to तो डेटा इंटरप्रेट कर रहा है, डेटा बता रहा है. ले 4 i cap minus 2 j cap plus 6 k cap. क्यू बार. bar is equal to I cap minus 2 j cap minus 3 k cap. ओके. Then p plus q makes an angle with axis. इज इट पी प्लस क्यू और इज इट पी बार प्लस क्यू बार बड़ी. p bar plus p bar sir. एंगल मेड बाय पी बार प्लस क्यू बार विद द विच एक्सिस. एक्स एक्सिस. X axis. अच्छा भाई, पहली बार ऐसा कुछ आ रहा है, किस तरह करें. एक काम करते, सबसे पहले पी बार प्लस क्यू बार तो फाइंड कर लेते हैं. तो लेट आर बार इज पी बार प्लस क्यू बार. भाई पी बार प्लस क्यू बार करते जाओ. 4 + 1 5 i कैप I cap -2 -2 minus 4 j cap प्लस 6 -3. cap. ये है तुम्हारा एक वेक्टर आर बार. एंड अब किसके साथ एंगल फाइंड करना है. दूसरा वेक्टर कौन सा है. एक्स एक्सिस. भाई एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है. 1,0. Yes. Isn't it I cap? 1 I cap. Alright. So angle between R bar and S bar, let us call it theta. So cos theta, my dot product is R bar dot S bar over mod R bar into mod S bar. मेरा डॉट प्रोडक्ट का रिश्ता. ये थीटा बेचारा लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर गया. अरे आओ राजा. आर बार 5 i cap minus 4 j cap plus 3 k cap dot. How much is S bar? Because it is x axis, so only I cap. अगर अच्छा तुमसे कहा होता फाइंड द एंगल मेड बाय आर बार विद द y एक्सिस, तो तुम ये S बार को क्या लेते. माय गॉडनेस. j cap. हाँ. तो रूट ऑफ. अच्छा ऐसे पूछते ही नहीं, तेरे को बड़ा पता है. मैं 25वीं बार एग्जाम दे चुका है. 5 1 जा 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर. ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजंट इट 25 25 इज 50. 50 मतलब 5√2 और ये 1 तो 1 ही है. 5 कट गया. 1/√2. भाई 1/√2 किसका कॉस है. 45 degree. माय गॉड. आपको ऐसा रखना है तो ऐसा रखो, या जिस तरह भी चेंज करना है. उनको आंसर में क्या है 5/√50 ऐसा लिखा है उनके आंसर में. और अरे क्या करें, जो गवर्नमेंट बोल रही है वो हम करते हैं. बराबर है ना. तो इस तरह. सो थीटा इज कॉस इनवर्स. बराबर. जैसा लोग बोलते हैं वैसा हम करते हैं. नहीं तो मेरे को 45 भी पता था, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ओके. मैं राउंड 1 का 60, मेरे पास कितना वक्त है 5 मिनट है. मैं राउंड 1 का 72 कर रहा हूं. स्टे विथ मी. राउंड 1 का 72. बहुत सारे फोर्सेस हैं. फॉलोइंग फोर्सेस start acting on a particle at rest at the origin. So particle का initial speed कितना है 0 and origin पे है. अब वेक्टर्स लिखना शुरू करो. F1 बार is 5 i cap minus 5 j cap. 5 j cap plus 5 k cap. Okay. F2 बार F2 bar is equal to 2 i cap plus 8 j cap plus 6 k cap. F3 बार F3 bar is equal to minus 6 i cap plus 4 j cap minus 7 k cap. and F4 बार 4 bar minus i cap minus 3 j cap minus 2 k cap. ओके. क्या मांगा है. द पार्टिकल विल मूव. कैसे मूव करेगा, कौन से प्लेन में. हाँ सॉरी. -2 k cap. ओके वेरी गुड, थैंक यू पीके.
थैंक यू फॉर ऑब्जर्विंग। पार्टिकल कौन सी दिशा में मूव करेगा? तो पार्टिकल विल मूव along the direction of resultant force in short, what is the resultant force? Isn't it F1 bar plus F2 bar plus F3 bar plus F4 bar? इन चारों का resultant is F1 bar plus F2 bar plus F3 bar plus F4 bar. Let's add them up. 5 plus 2 7, 7 minus 6 1, 1 minus 1 0, minus 5 plus 8 3, 3 plus 4 7, 7 minus 3 5 plus 6 11, 11 minus 7 4, 4 minus 2. So can you see my resultant F bar is 4j cap plus 2k cap Newton. So j cap and k cap, matlab which plane is it? YZ plane. So as F bar is in YZ plane, so particle also moves along YZ plane. Alright, मैं करने जा रहा हूं, थोड़ा सा मेरे पास वक्त है। राउंड 2 का 3 नंबर पीपल, आई होप यू आर हॉपिंग ऑन इट। लेट्स क्लाइंब ऑन टू द बैंड वैगन। आ जाओ तेजी। अरे थम जा बेटा, तुझे क्या लगा मैं रोबोट हूं? अरे आ जाओ, मतलब पहले चले तो पहुंच तो जाओ अपने पॉइंट पे। भाई आप सबके लिए दिव्य वहां पे हेल्पिंग हैंड लेके बैठा है, आपको पेज वेज सब बताएगा, 1 रुपया नहीं लेगा जरा भी, एकदम फ्री हेल्प। राउंड 2 का 3, यस। कौन सा बार इज इक्वल टू ए बार? ओके, ओके, एक सेकंड, मैंने आपको याद है स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में लिखवाया था वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। कौन सा वेक्टर होता है वो? ए बार क्रॉस बी बार, बराबर, इज के टाइम्स दैट ऑफ सी बार इज इक्वल टू वो चेंज करो, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप करो, वो गलत है। हाँ, कुछ कह रही थी पीके? सो द वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज एक्चुअली ए बार क्रॉस बी बार। तो हमको फाइंड करना है ए बार क्रॉस बी बार। दे धमाधम ले धमाधम, 2 3 6, 3 माइनस 6 2। चलो भाई फाइंड कर रहे हो क्या? आई कैप 3 2 जा 6 माइनस 6 6 जा 36, वो भी माइनस। ओ माय गॉड, हो जाने दे, आज तो हो ही जाने दे। जे कैप आ गया, 2 2 जा 4 माइनस 3 6 जा 18 प्लस के कैप 6 2 जा 12 माइनस 3 3 is 9. So 6 and 36 is how much? 42 I cap. 4 minus 18 is minus 14. Minus minus plus. Plus 14 J cap. Minus 12 minus 9. Minus 21 K cap. And they have given that A bar cross B bar is K times this vector C bar. Okay. By how much is A bar cross B bar? 42 I cap plus 14 J cap minus 21 K cap is K times C bar कहाँ है बुलाओ? 6 I cap plus 2 J cap minus 3 K cap. Ladies and gentlemen, do you see anything? इसमें से कुछ मैं कॉमन निकाल के ये ला सकता हूँ क्या? Yes sir, 7 निकालो। अगर मैं यहां से 7 निकाल दूं तो 7 6 जा 42, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। क्या हुआ चचा?
काट दूं? वैसे वेक्टर कटते नहीं है ऐसे, ये तो सिर्फ ऐसे ही है। के की वैल्यू 7 आई, चेक कीजिए सही है। यस सर। ओके, और भाई मैं एक और करना चाह रहा हूं। क्या? सॉरी, वो 3 चेंज नहीं किया होता तो प्रॉब्लम हो जाता। तभी तो मैंने करवाया ना चेंज। राउंड 2 का 13 फटाफट, आई थिंक दैट वुड बी आवर लास्ट न्यूमेरिकल। राउंड 2 का 13, जल्दी 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 जल्दी। 3 वेक्टर्स दिए होंगे सर, नाम लिखूं? नहीं नहीं, नाम देगा तो मैं क्या करूंगा नाम का, मैं लिखा पढ़ी तो कर नहीं रहा हूं। ओके, रेडी रेडी। ए बार नाम देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप। माइनस 2 के बी बार बोले तो 5i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड सी बार बोले तो माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एंड क्या कहा है? ओह हो, एक ही प्लेन में कोप्लेनर, तो फिर ए की वैल्यू कितनी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद है? यस सर। इफ ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार इज 0, देन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बरोबर है ये? ओके, एक काम करता हूं, वैसे मैं इंटरचेंज कुछ भी कर सकता हूं, तो जिसमें मुझे पता है ना सब कुछ, ए बार और सी बार, उनको कोपचे में लाता हूं। 10 ए बार क्रॉस सी बार ऐसा रखा और बी बार को यहां डॉट में ला दिया, ताकि क्या ए के साथ बार बार कुछ करना ना पड़े। ओके, शुड बी 0, ये हमारा मेन इक्वेशन होगा। नाउ ए बार क्रॉस सी बार सर ऐसा अदला-बदली कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते ना। अगर ए बार बी बार और सी बार कोप्लेनर है तो डोंट यू अग्री, बी बार ए बार और सी बार भी कोप्लेनर होंगे। है कि नहीं? तीसरे एक ही प्लेन में तीनों, ए बार क्रॉस सी बार 2 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 एंड सी बार -1 -1 2 3। चलो बेटा, आई कैप 3 3s are 9 minus 2 2s are 4 -4 minus j cap 2 3s are 6 minus -1 minus 2 is 2 सर। plus k cap 2 2s are 4 minus 3 into -1 भाई आंसर 9 minus -4 13 i cap 6 minus 2 4 4 minus -3 7k कैप। ओके, नाउ क्या करने का? नाउ बी बार ए बाप रे, अच्छा ए बार क्रॉस सी बार है यार, क्या तुम लोग भी। बी बार डॉट, भाई बी बार 5i कैप प्लस ए जे कैप प्लस के कैप, उसको डॉट करने का किसके साथ? इसके साथ 13i कैप -4j कैप प्लस 7k कैप। वेल, आई डोंट थिंक मुझे आपको डॉट समझाने की जरूरत है। नहीं सर, dx plus dy plus easy। 5 into 13 आई कैप वाले प्लस a into -4 प्लस 1 into 7। 15 3s are 65 minus 4a plus 7, and how much is 65 plus 7? Now for coplanar vectors, b bar dot a bar cross c bar is 0। ओ अर्थात 72 minus 4a, तो 4a is equal to 72। 18 4s are 72। Yes, sir. Yes sir। a is equal to, आंसर चेक करें हुजूर। ऑलराइट, आई थिंक वी आर रियली आउट ऑफ टाइम, पर बहुत मजा आया, धमाधमी लेक्चर रहा एंड आपके साथ काम करके ये एक वेक्टर्स खत्म किया आज। तो आप भी इसके कमेंट्स में होमवर्क दिया होगा, प्लीज उसको कंप्लीट करें एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय। Thank you sir।